Acha. So yesterday we covered the entire movement of water through xylem, and the only bit that we're left with concerning transporting plants is translocation of solutes across phloem. Yes, Sanya, sure. I'll just upload all the recordings after this class, inshallah. Okay. So phloem, basically, we discussed the structure of phloem in our previous classes. We said that phloem is a vascular tissue, and phloem essentially is made up of two types of cells. We have companion cells, which have all cytoplasm, all the organelles, all normal metabolism, functioning, everything. And we have sieve tube elements. Now, the sieve tube elements have scanty cytoplasm. उनकी बिल्कुल sides पे cytoplasm होता है, and they have very minimal organelles, usually खाली mitochondria और endoplasmic reticulum ही हमें नजर आता है. और जो cytoplasm पे होता है, that is present in a very little amount, and it is at the edges of the sieve tube elements, at the edges of the sieve tube. और जो बीच वाली स्पेस होती है, जो रिमेनिंग स्पेस होती है हमारी sieve tube की, that is empty, और उसके थ्रू हमारे पास जो हमारा phloem sap है, that is present. So with green, I've highlighted the phloem sap. The phloem sap is basically the you can say the fluid which contains your sugars, your amino acids, all your assimilates. तो phloem sap के अंदर हमारे पास sugars होते हैं, हमारे पास amino acids होते हैं. So we have our sugars, we have amino acids, and we have, let's say, other assimilates, which could be any other thing that is being transported apart from sugars and amino acid via the flow. Actually, now how do translocation takes place? Now, this is basically a mesophyll cell. This is your mesophyll cell, which is your source. Source is simply the area where, or the cell where food is present, where food is either made or the food is already stored. इन मेजोरिटी केसेस हमारे पास जो मेच्योर प्लांट होता है उसके जो लीव्स होते हैं जब वो मेच्योर इनफ हो जाते हैं दैट दे कैन फोटोसिंथेसाइज एंड क्रिएट फूड ऑन इट्स ओन, शुगर्स ऑन इट्स ओन. तो हमारे पास जो सोर्स है वो लीफ बन जाते हैं और लीफ के भी मेसोफिल सेल्स बन जाता है, बिकॉज वी नो दैट मेसोफिल सेल्स आर द फोटोसिंथेटिक cells because they have chloroplasts. We will do some topical questions tomorrow. We'll wind up this chapter today and we'll be doing topical questions of plants tomorrow, in which we will see that in some questions हमारे पास क्या कहते हैं, लीव्स नहीं बने होते. हमारे पास एक ग्रोइंग प्लांट होता है, ग्रोइंग प्लांट में लीफ एग्जिस्ट नहीं करते, लीफ अभी तक स्प्राउट नहीं हुए होते, या अगर लीव्स बन गए होते हैं तो वो इमेच्योर लीव्स होते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस कैरी आउट नहीं कर रहे होते या नहीं कर पा रहे होते हैं. इन दैट केस हमारे पास लीफ अगर इमेच्योर है, लीफ अगर बना ही नहीं है, तो उस ग्रोइंग प्लांट को जो फूड मिल रहा होता है वो लीफ के थ्रू नहीं मिल रहा होता. इंस्टेड हमारे जो सीड होता है, सीड के अंदर जो एंडोस्पर्म होता है जो कि ग्राउंड के नीचे प्रेजेंट होता है, वो हमारे पास सोर्स होता है. सो जरूरी नहीं है कि सोर्स हमेशा मीजोफिल ही हो, सोर्स हमेशा लीफ ही हो. सोर्स बेसिकली वो जगह होती है जहां से फूड प्रोवाइड किया जा रहा होता है, और सिंक हमारे पास वो जगह होती है जो फूड रिसीव कर रही होती है, शुगर्स को रिसीव कर रही होती है. सो इट इज नॉट अ हार्ड एंड फास्ट रूल कि हमारे पास हमेशा सोर्स मेसोफिल सेल्स या लीव्स ही होंगे. हमारे पास सोर्स एंडोस्पर्म भी हो सकता है, सीड भी हो सकता है, हमारे पास any part of the plant which is providing food is basically your source. Conventionally, usually it is the mesophyll cell, the leaves. अच्छा जी. Now, how does ट्रांसलोकेशन टेक प्लेस? नाउ ये हमारे पास कंपेनियन सेल है, ये हमारे पास सीव ट्यूब है. दिस इज द कंपेनियन सेल. नाउ ऑब्वियसली द कंपेनियन सेल एंड द सीव ट्यूब दे आर कलेक्टिवली नोन एज फ्लोएम. तो ये हमारे पास बेसिकली कलेक्टिवली फ्लोएम टिश्यू है, फ्लोएम वेसल है. नाउ एंड वी नो दैट फ्लोम के साथ हमेशा जाइलम भी कंटिन्यूअस होती है, तो मैं साइड पे जाइलम वेसल भी स्केच आउट कर रही हूँ. So this, let's say, is the xylem vessel, which is continuous with the flow. Now, what happens is कि हमारे पास जो हमारा mesophyll cell होता है, जो हमारी source cell होता है, let me just fix this diagram a bit. This is our source cell, mesophyll cell, और ये हमारे पास क्या कहते हैं, हमारा
कंपेनियन सेल है। नाउ हमारे पास अभी के लिए मैं ये फ्लोएम वाली आउटलाइन रिमूव कर रही हूँ सो दैट यू गाइस आर एबल टू सी व्हाट्स हैपनिंग इन दिस डायग्राम मोर क्लियरली। ओके, सो हमारे पास एक पंप होता है which is present over here. There is a hydrogen ion ATPase pump. Okay, let me use a different color for this. So this thing that I have drawn in blue is a hydrogen ion ATPase pump, जिसको हम लोग प्रोटॉन पंप भी बुलाते हैं बिकॉज हाइड्रोजन आयन एसेंशियली प्रोटॉन होता है। सो हमारे पास इसको हम प्रोटॉन पंप भी बुला सकते हैं, हाइड्रोजन आयन एटीपीएस पंप भी बुला सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन ट्रांसलोकेशन इज बेसिकली कि हमारे पास जो कंपेनियन सेल होता है, कंपेनियन सेल की जो सेल वॉल होती है उसमें होता है हाइड्रोजन आयन एटीपीएस पंप। now हाइड्रोजन आयंस जो है वो यहाँ पर प्रेजेंट होंगे कंपेनियन सेल में, एंड दीज हाइड्रोजन आयंस are actively pumped from the companion cells into the cell wall of the mesophyll cells. Let me repeat myself again. हमारे पास कंपेनियन सेल्स और सोर्स सेल्स जो है, मेसोफिल सेल्स जो है, वो आपस में अटैच मतलब आपस में बराबर बराबर होते हैं, दे आर एडजेसेंट टू वन अनदर। हमारे जो कंपेनियन सेल्स होते हैं उनकी सेल वॉल में एक कैरियर पंप होता है, उसको हम हाइड्रोजन आयन एटीपीएस पंप या प्रोटॉन पंप कहते हैं, which actively pumps protons from companion cell to the cell wall of source या फिर मेसोफिल सेल। ठीक है, सबसे पहले ये चीज होती है। नाउ हमारे पास सोर्स में क्या हो रहा होता है, सोर्स सेल जो है ना इसमें हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे हमारे पास हो रहा होगा फोटोसिंथेसिस बिकॉज इट हैज क्लोरोप्लास्ट। फोटोसिंथेसिस में हमारे पास क्या बन रहा होता है, फोटोसिंथेसिस में हमारे पास बन रही होती है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। Now, this glucose is basically the sugar which is to be provided to the rest of this plant. It has to be translocated. Now, the catch over here is कि हमारे पास जो शुगर की मूवमेंट होती है ना वो ग्लूकोज की फॉर्म में नहीं होती प्लांट्स में, वो सुक्रोज की फॉर्म में होती है। So within the mesophyll cell, the glucose is converted into sucrose immediately. तो हमारे पास मेसोफिल सेल में ही ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाती है किसमें, सुक्रोज में। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास ग्लूकोज बन गई मेसोफिल सेल में और वो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गई सुक्रोज में। नाउ दिस इज द शुगर व्हिच वुड बी ट्रांसलोकेटेड वाया द फ्लोम ट्यूब। उसके लिए हमारे पास जो सुक्रोज है उसको मेसोफिल सेल से जाना होगा इनटू द कंपेनियन सेल और कंपेनियन सेल से पहुंचना होगा सीफ ट्यूब के अंदर। हाउ डज दैट हैपन? नाउ हमारे पास सबसे पहला स्टेप मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले हमारे पास जो हाइड्रोजन आयंस हैं वो कंपेनियन सेल से एक्टिवली पंप हो रहे होते हैं इन द सेल वॉल ऑफ द मेसोफिल सेल। नाउ व्हाट हैपेंस इज दैट हमारे पास यहाँ पे क्या था, यहाँ पे लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन सी, तभी एक्टिव ट्रांसपोर्ट हुआ। लो टू हाई मूवमेंट जो होती है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। सो कंपेनियन सेल्स में जो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन है वो लो थी। Against the concentration gradient, these hydrogen ions were pumped inside the mesophyll cell. Naturally क्या होगा, naturally हमारे पास क्या कहते हैं, या हमारे पास only mesophyll cells and guard cells are able to undergo photosynthesis, क्योंकि इन्हीं के पास वो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, बाकी किसी प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। So only the cells which have chloroplast can undergo photosynthesis and therefore they're the source cells. Now, because there is a low concentration of hydrogen ions in the companion cells, naturally हमारे पास passive transport होना चाहिए, और passive transport क्या होता है कि हमारे पास high to low movement हो जाए किसी चीज की, and it does not require energy in the form of ATP. ये वाला तो जो process था इसने तो ATP require किया होगा because it is active transport, और यहाँ पे hydrogen ion ATPase pump लिखा हुआ भी है। Now, the catch over here is कि हमारे पास जो ये प्रोटॉन है ना ये वापस इतनी आसानी से नहीं आ सकता। ऑल्दो ये वापस आना चाह रहा है बट ये इतनी आसानी से वापस नहीं आ सकता। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास जो ये प्रोटॉन है, जो ये हाइड्रोजन आयन है, इट इज अ चार्ज मॉलिक्यूल। चार्ज मॉलिक्यूल अगर ये है तो इसको क्या कहते हैं,
वापस आने के लिए कोई कैरियर या चैनल प्रोटीन चाहिए होगा, बिकॉज जो चार्ज पार्टिकल्स हैं, चार्ज आयंस हैं, वो विदाउट एनी फैसिलिटेटर एंटर बैक नहीं कर सकता। और द थिंग इज कि अगर इस हाइड्रोजन आयन को वापस आना है तो इसको क्या कहते हैं, एक चैनल प्रोटीन के थ्रू आना होगा। अब मसला ये है कि हमारे पास ये हाइड्रोजन आयन का जो चैनल प्रोटीन है विच वुड एक्सेप्ट दिस हाइड्रोजन आयन बैक इनटू द कंपेनियन सेल, वो एक को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। उस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का नाम है हाइड्रोजन आयन सुक्रोज को ट्रांसपोर्टर। So if the hydrogen ion has to come back via facilitated diffusion, obviously हमारे पास पंप्स जो हैं उनके थ्रू खाली एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो सकती है। ये वाली जो पैसिव ट्रांसपोर्ट है वो पंप्स के थ्रू नहीं हो सकती। हमें एक और प्रोटीन चाहिए जो कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन करवा सके इस हाइड्रोजन आयन की। बट द कैच ओवर हियर इज कि हमारे पास जो ये प्रोटीन है, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, which would allow the movement of this hydrogen ion back into the companion cell, it is a co-transport protein. So hydrogen ion अकेला नहीं आएगा, hydrogen ion would come back with sucrose. Now this is known as the active loading of sucrose. But the question over here is कि हमारे पास जो सुक्रोज है उसकी हम एक्टिव लोडिंग क्यों कह रहे हैं? जो हाइड्रोजन आयन वापस आया है थ्रू द को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, वो तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के थ्रू आया है। सो व्हाई इज दिस स्टेप टर्म्ड एज द एक्टिव लोडिंग ऑफ सुक्रोज? व्हाई इज इट कॉल्ड एक्टिव लोडिंग? क्योंकि जो हमारे पास री एंटर हो रहा है हाइड्रोजन आयन, दैट इज तो एंटरिंग बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। Then why are we calling this active loading of sucrose? Yeah, the steps are written down. I have written down the steps pehle se. So I'll read through all those steps once we're done with this diagrammatic explanation. Okay. Now the catch over here is कि हमारे पास बिल्कुल जो हाइड्रोजन आयन है वो facilitated diffusion के through आया. Do you all agree? Are you all on this page that hydrogen ion is coming back into the companion cell with the right? It's coming back via facilitated diffusion through the co-transport protein. The catch over here is कि facilitated diffusion हो रही है प्रोटॉन की, ये बात बिल्कुल सही है that the hydrogen ion is coming back via facilitated diffusion. But हमारे पास सुक्रोज का हो रहा है active transport. Now, this is a very interesting phenomena. It is not frequently tested, but suggest का ये question आता है, इसीलिए मैं हर दफा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ। हमारे पास इसको थोड़ा सा मैं मैग्नीफाई करके आप लोगों को दिखाती हूँ। लेट्स से ये हमारा कंपेनियन सेल है, ठीक है, दिस इज द कंपेनियन सेल, और ये हमारे पास क्या कहते हैं, दिस इज आवर को ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। अच्छा, एंड कंपेनियन सेल इज ऑब्वियसली द पार्ट ऑफ फ्लोएम, ठीक है, कंपेनियन सेल जो है इट इज पार्ट ऑफ द फ्लोएम। ना फ्लोएम में अगर मैं एक दफा हल्का सा स्केच आउट कर दूं, हल्का सा हाईलाइट कर दूं, इसमें फ्लोएम सैप एग्जिस्ट कर रहा है, फ्लोएम सैप है हर जगह हमारे पास। फ्लोएम ऐसा नहीं कि खाली है, जैसे हमारी ब्लड वेसल्स कभी भी खाली नहीं होती ना ब्लड से, बिल्कुल उसी तरह से जो हमारी वास्कुलर टिश्यूज हैं प्लांट के, दे आर ऑल्सो ऑलवेज फुल। तो हमारे पास फ्लोएम सैप एग्जिस्ट कर रहा है। फ्लोएम सैप में क्या होता है? फ्लोएम सैप में होते हैं हमारे पास शुगर्स होती हैं। हमारे पास फ्लोएम में ऑलरेडी शुगर्स प्रेजेंट है। डू यू ऑल एग्री कि हमारे पास फ्लोएम सैप में शुगर्स प्रेजेंट होंगी, तो हमारे पास फ्लोएम में हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ शुगर्स है, and this collective thing is basically your phloem. So can we say that phloem has a high concentration of sugar? Now, हमारे पास फ्लोएम के अंदर जो शुगर्स हैं वो ऑलरेडी प्रेजेंट है, लेकिन चूंकि मेसोफिल सेल ड्यूरिंग द डे कंटिन्यूसली फोटोसिंथेसिस कर रहा होता है, कंटिन्यूसली शुगर्स बना रहा होता है, तो उसको वो शुगर्स जो है वो ट्रांसपोर्ट भी करवानी है। तो मेसोफिल सेल में शुगर्स की कॉन्सेंट्रेशन एक्चुअली कम होती है इन कंपैरिजन टू द फ्लोएम सैप। फ्लोएम सैप तो है ही एक ऐसा फ्लूइड विच कंटेन्स शुगर्स, राइट? तो हमारे पास फ्लोएम में जो सैप है उसमें तो शुगर प्रेजेंट है, मेसोफिल सेल जैसे जैसे शुगर्स बना रहा है वो वैसे वैसे ट्रांसफर कर रहा है। सो मेसोफिल सेल के अंदर थोड़ी सी शुगर बनी,
भाई तो मैंने शुगर बना लिया, तुम ले लो, थोड़ी सी शुगर बनी, मैंने शुगर बना लिया, तुम ले लो. So mesophyll cell, although it is the source, but it has a low concentration of sugar in comparison to the phloem tube. Are you all able to understand this? कि हमारे पास फ्लोएम में ज्यादा शुगर कॉन्सेंट्रेशन है, मेसोफिल सेल में कम शुगर कॉन्सेंट्रेशन है. हमारे पास बेसिकली कंपेनियन सेल इज द पार्ट ऑफ द फ्लोएम ना, ये एक चीज है. द कंपेनियन सेल्स एंड द सीव ट्यूब एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड. ठीक है ना. हमारे पास अब सवाल ये है कि चलो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हो रही है हाइड्रोजन आयन की, और क्या कहते हैं एक्टिव लोडिंग हो रही है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रही है किसकी भला, सुक्रोज की. तो क्या यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड होगा? यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होगा. आप लोगों ने ए टू में भी सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट पढ़ा था, मैं फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये हमारे पास कंपेनियन सेल है, ठीक है, दिस इज आवर कंपेनियन सेल, दिस इज आवर मेसोफिल सेल, दिस इज आवर मेसोफिल सेल. अब यहां से हमारी जो प्रोटॉन है that would have moved across this transport protein. Now the proton is a charged molecule. This is something you study in physics कि जब हमारे पास कोई भी charged molecule एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो वो electric potential energy produce करता है. Does the movement of a charged particle from one point to another produce electric potential energy? Do you all agree? हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए active transport requires energy, चूंकि वो अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट हो रही होती है ना. हमारे पास कभी कभार वो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी होती है. मोस्ट ऑफ द टाइम सेल्यूलर प्रोसेसेस में जहां पर एनर्जी चाहिए होती है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. ठीक है. बट हमारे पास एनर्जी अगर किसी और फॉर्म में भी मिल रही है वो भी यूटिलाइज हो सकती है इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट. यहाँ पर जब सुक्रोज मूव करेगा, हाइड्रोजन आयन अकेला नहीं आ रहा, हाइड्रोजन आयन के साथ सुक्रोज भी आ रही है. When the hydrogen ion moves from this point to this point across this transport protein, इसकी इस मूवमेंट से क्या प्रोड्यूस हुई होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. And that electric potential energy acts as the driving force to pull the sucrose actively with the proton. Is this clear? Any questions? Okay. I'm basically saying कि हमारे पास जो प्रोटॉन है उसपे तो कोई एनर्जी नहीं चाहिए ना मूव करने के लिए, वो तो पैसिवली मूव कर रहा है डाउन द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस दिस ट्रांसपोर्ट प्रोटीन. जब ये प्रोटॉन मूव करेगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तो ये प्रोड्यूस करेगा, ये जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. That electric potential energy generated due to the movement of this charged particle is acting as the driving force, the driving energy, which pulls the sucrose actively with this proton. तो जो सुक्रोज है वो प्रोटॉन की जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है उसको यूज करते हुए एक्टिवली ट्रांसपोर्ट होता है, नॉट द एनर्जी ऑफ द एटीपी. ठीक है. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड एक्टिव लोडिंग, क्योंकि जो सुक्रोज है वो एक्टिवली ही मूव कर रहा है, इट्स जस्ट नॉट यूजिंग एटीपी. Instead, it is using the energy which is being generated due to the movement of proton from one point to another, known as the electric potential energy. तो वैसे अच्छा, इस चीज से नहीं फर्क पड़ता कि सक्रोज जो है वो इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड है. हमारे पास जो सुक्रोज है या कोई भी शुगर है फॉर दैट मैटर वो डायरेक्टली फॉस्फोलिपिड बैरियर को क्रॉस नहीं कर सकती. ग्लूकोज भी हो गया, सुक्रोज भी हो गया, अमीनो एसिड्स भी हो गया, ये सारे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं दे ऑल रिक्वायर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स. तो सुक्रोज को भी अगर मूव करना होता है वो किसी न किसी ट्रांसपोर्ट प्रोटीन के थ्रू ही मूव करती है. And that is why there is a transport protein known as the proton sucrose cotransport protein. Now, once this sucrose is inside the companion cell, it would diffuse into the sieve tube element via the plasmodesmata. तो यहाँ पर क्या हो रही है, diffusion of sucrose from the companion cell into the sieve tube हो रही है across the plasmodesmata. अब जब सुक्रोज आ गई, ऑलरेडी शुगर्स प्रेजेंट थी और शुगर आ गई और सुक्रोज आ गई, सो कैन वी से दैट द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीजेस एंड द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सीव ट्यूब
decreases once sucrose diffuses inside the sieve tube. Do you agree that the water potential would reduce when the sucrose is entering the sieve tube? Now, इसी वजह से हमारे पास क्या होगा, that because the water potential of the sieve tube has reduced, xylem बिल्कुल बराबर में, xylem से जो water है that would enter the sieve tube. ये water है हमारे पास, it is entering the sieve tube. Now when it is entering the sieve tube, तो हमारे पास water आ रहा है, यहाँ पे top पे water आ रहा है. Can we say that once the water enters over here, हमारे पास इस एरिया का जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा एट द टॉप ऑफ द फ्लोएम, जो सोर्स वाला एंड है बेसिकली, वहां पर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा बिकॉज ऑफ द वाटर कमिंग फ्रॉम द जाइलम. राइट, नाउ लेट्स पुट दिस ऑन होल्ड एंड सी व्हाट इज हैपनिंग इन द सिंक. ये हमारे पास सिंक है, ठीक है. अब इस सिंक में हो रही होती है जी एक्टिव अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज. अब एक्टिव अनलोडिंग ऑफ सुक्रोज क्यों हो रही होती है? हमारे पास जो सिंक्स हैं, हमारे पास सिंक्स क्या है जो रिसीव कर रहे होते हैं शुगर को, हमारे पास सिंक्स के पास भी शुगर्स होती हैं. और हमारे पास होता क्या है, फोटोसिंथेसिस रोज हो रहा होता है, ठीक है. एंड फोटोसिंथेसिस में हमेशा मोर शुगर इज प्रोड्यूस देन इज रिक्वायर्ड बाय द प्लांट. तो हमारे पास सिंक्स के पास भी फूड रिजर्व होता है, शुगर रिजर्व होता है, शुगर कॉन्सेंट्रेशन एग्जिस्ट कर रही होती है. सो यहाँ पर द सिंक हैज हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन क्योंकि वो शुगर को स्टोर कर रहा है. इन कंपैरिजन यहाँ पर सिंक वाला जो फ्लोएम का पार्ट होगा उसकी शुगर कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो लो होगी, ठीक है. और सिंक की जो शुगर कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई होगी जब हम कंपेयर करेंगे. ऊपर कंपैरिजन डिफरेंट है, ऊपर मेसोफिल सेल में कम शुगर कॉन्सेंट्रेशन है और फ्लोएम में शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है. बट व्हेन वी कंपेयर इट विद द सिंक, तो सिंक में शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बिकॉज वो शुगर को स्टोर कर रहा होता है, और फ्लोएम में कंपैरेटिवली शुगर कॉन्सेंट्रेशन कम है. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? हमारे पास यहाँ पर जो शुगर है वो जब जा रही होगी इनटू द सिंक, तो हमारे पास दिस वुड बी अगेन एन एक्टिव प्रोसेस. इसकी क्या एक्टिव प्रोसेस की डिटेल्स है वो जानना जरूरी नहीं है, दे आर नॉट टेस्टेड. तो हमारे पास यहाँ पे बस इतना बताना चाहिए कि सुक्रोज की जो लोडिंग होती है और अनलोडिंग होती है वो दोनों एक्टिवली हो रही होती है, ठीक है. अब जब हमारे पास शुगर चली गई सिंक के अंदर, तो हमारे पास ऑलरेडी जैसे ही शुगर चली जाएगी सिंक के अंदर, तो हमारे पास जो सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन है, वंस द शुगर इज गिवन टू द सिंक, वुड द सोल्यूट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज एंड वुड द वाटर पोटेंशियल इंक्रीज वंस द शुगर इज गिवन अवे टू द सिंक? Now, when this happens, when the solute concentration decreases and the water potential increases, तो हमारे पास at the sink end जो water है, it goes back to the xylem. Now, the water is going back to the xylem, जिसकी वजह से at this point हमारे पास जो pressure है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है at the sink, वो फ्लोएम का डिक्रीज हो जाएगा. डू यू अग्री? सो ऊपर टॉप पे जो सिंक वाला, सॉरी, जो सोर्स वाला एरिया है टॉप पे, वहां पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा है. सिंक वाले एंड पे जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है वो कम है. हमने कल ही पढ़ा था मास फ्लो में कि जब हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट एस्टैब्लिश होता है, सो हमारे पास हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट होती है, जिसकी वजह से जो फ्लोएम सैप है वो सोर्स टू सिंक ट्रांसलोकेट हो जाता है. इज दिस क्लियर? एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस? हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देख लेते हैं रिटन फॉर्म में. सो the hydrogen ion ATPase actively pumps hydrogen ions from the companion cell walls of the source cells against the concentration gradient. Sorry, from the companion cells into the cell walls of the source cells against the concentration gradient. तो companion cells से जो hydrogen ions हैं वो actively pump हो रहे होते हैं in the cell walls of the mesophyll cells. The hydrogen ions try to re-enter into the companion cells. They can only re-enter the companion cells by binding to a hydrogen ion sucrose co-transport protein that transports proton
that transports hydrogen ions and sucrose molecules into the companion cells simultaneously. The hydrogen ions enter via facilitated diffusion, whereas sucrose enters actively since phloem has a greater concentration of sucrose in comparison to mesophyll cells. The sucrose, once inside the companion cells, then diffuses into the sieve tube element via plasmodesmata. This entire process is known as active loading of sucrose. This lowers the water potential within the phloem, enabling water to move from the neighboring xylem vessels into the phloem via osmosis, creating a region of high hydrostatic pressure. At the level of the sink, active unloading of sucrose occurs into the neighboring sink cells, making the water potential in the phloem to increase. Water leaves the phloem to re-enter the xylem vessels, creating a region of low hydrostatic pressure. This difference in hydrostatic pressure creates a water potential gradient, pressure potential gradient होना चाहिए, not water potential. Creates a pressure potential gradient which allows the mass flow of sucrose and other nutrients to occur through the phloem vessels. Is translocation clear? Any questions about it? Mass flow happens because of pressure potential gradient. Mass flow would always happen because of pressure potential gradient. Osmotic pool में इतनी ताकत होती नहीं है कि वो मास फ्लो करवा सके. हमारे पास ऑस्मोसिस कब हो रहा होता है जब जाइलम से फ्लोएम में मूवमेंट हो रही होती है या फ्लोएम टू जाइलम मूवमेंट हो रही होती है. लेकिन टॉप टू बॉटम या सोर्स टू सिंक अगर मूवमेंट हो रही होती है वो मास फ्लो होता है एंड दैट इज बिकॉज ऑफ प्रेशर पोटेंशियल ग्रेडियंट. या मास फ्लो वाज हैपनिंग जब हमारे पास हाई प्रेशर से लो प्रेशर मूवमेंट हुई. लेकिन जब जाइलम से फ्लो में मूवमेंट हुई यानी जाइलम से क्या कहते हैं सेफ ट्यूब एलिमेंट में वाटर मूव किया वो ऑस्मोसिस के थ्रू मूव किया. जब सिंक एंड पे फ्लोएम से जाइलम में वाटर मूव किया तो वो ऑस्मोसिस के थ्रू मूव किया. लेकिन जो मास फ्लो हो रहा है फ्रॉम द सोर्स टू द सिंक दैट इज ड्यू टू द प्रेशर पोटेंशियल ग्रेडियंट. ठीक है. अच्छा इसको अक्सर क्या कहते हैं ये वाली डायग्राम आप लोगों के एमसीक्यूज में आती भी है. Once pressure flow hypothesis in which we have to identify कौन सी चीज जाइलम है कौन सी चीज फ्लोम है कौन सा हमारे पास सोर्स है कौन सा हमारे पास सिंक है. So if you look over here in this diagram हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है मतलब ये जो पूरा हमारा क्या कहते हैं सिस्टम बना हुआ होता है वेस्कुलर सिस्टम जो बना हुआ होता है इट इज सेमी परमिएबल इन नेचर. इट इज बेसिकली मिमिकिंग सेल मेम्ब्रेन जो हमारी नॉर्मल सिलेक्टिवली परमिएबल सेल मेम्ब्रेन होती है उसको ये मिमिक कर रहा होता है. तो हम सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से ही अपने ये वेस्कुलर सिस्टम बना रहे होते हैं इस एक्सपेरिमेंट में. हमारे पास दो बीकर्स होते हैं दो डिफरेंट सिस्टम्स होते हैं. अब हमारे पास व्हाट हैपेंस इज कि हमारे पास जो एक एरिया होता है वहां पर शुगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होती है. वी हैव हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन और एक एरिया होता है जिसमें हमारे पास लो शुगर कॉन्सेंट्रेशन होती है. एंड देन देयर इज वन वेसल जिसके थ्रू वाटर मूव कर रहा होता है. एंड देन देयर इज अनदर वेसल जिसके थ्रू हमारे एसिमिलेट जो हमारे सोल्यूट्स हैं वो मूव कर रहे होता है. तो हमारे पास जहां पर जिस वेसल के थ्रू हमारे एसिमिलेट्स मूव कर रहे हैं विच इज दिस वेसल जहां पे सोल्यूट पार्टिकल्स आपको मूव करते हुए दिखाई दे रहे होंगे दैट वुड बी फ्लोएम. तो दिस वेसल इज फ्लो एंड दिस वेसल थ्रू विच वाटर मॉलिक्यूल्स आर मूविंग दैट इज जाइलम. हमारे पास जो हाई शुगर कॉन्सेंट्रेशन वाला एरिया है उसको हम सोर्स बुलाते हैं और इसको हम नहीं सॉरी दिस वुड बी योर जहाँ पे जहां से शुगर्स जा रही होती हैं यानी जिस एरिया से शुगर जा रही होती है टूवर्ड्स अनदर एरिया. सो दैट डायरेक्शन बेसिकली टेल्स अस व्हिच इज द सोर्स व्हिच इज द सिंक. तो यहाँ पर जो हमारी वो है क्या कहते हैं शुगर्स हैं दे आर मूविंग दिस वे. सो दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज सोर्स एंड द अदर वन इज सिंक. Comparison between xylem and phloem similarities क्या है xylem and phloem में both of them involve a diffusion. हमारे पास क्या कहती हैं डिफ्यूजन हो रही होती है ऑस्मोसिस हो रहा होता है दोनों में. मास फ्लो भी हो रहा होता है दोनों में. हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ग्रेडियंट दोनों में बन रहा होता है. दोनों में प्रेशर पोटेंशियल ग्रेडियंट की वजह से मास फ्लो हो रहा होता है. और सिंपलर लेवल्स पे फ्रॉम वन सेल टू अनदर में हमारे पास हम ऑस्मोसिस भी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. सो डिफ्यूजन भी हो रही होती है ऑस्मोसिस भी हो रहा होता है मास फ्लो भी हो रहा होता है. मास फ्लो माइंड यू इज ऑलवेज ड्यू टू प्रेशर पोटेंशियल ग्रेडियंट नॉट ऑस्मोटिक पोटेंशियल. बोथ ऑफ देम ट्रांसपोर्ट अक्रॉस लॉन्ग डिस्टेंसेस. फिर अगर हम कंपेयर करें तो हमारे पास जो जाइलम और फ्लोम है जाइलम हमेशा यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है
क्यों यूनिडायरेक्शनल फ्लो करती है? बिकॉज जाइलम में हमारे पास जो वाटर है वो हमेशा ग्राउंड से ही आ रहा होता है। आपको लीफ से वाटर नहीं मिलेगा, आपको स्टेम से वाटर नहीं मिलेगा। जाइलम ट्रांसपोर्ट करती है वाटर को। सो डाउन टू टॉप मूवमेंट होती है जाइलम की, इट इज नो अदर वे राउंड। सो पानी हमेशा जमीन से मिलेगा, सॉइल से मिलेगा, एंड फ्रॉम टॉप टू बॉटम द वाटर वुड बी ट्रांसपोर्टेड। ऑन द अदर हैंड फ्लो में होता है बायोडायरेक्शनल फ्लो। मैंने बताया भी था एट द स्टार्ट ऑफ द लेक्चर कि इनिशियली हमारा जो प्लांट होता है उसके लीव्स नहीं बने हुए होता है, तो उसका जो सीड होता है ना, उस सीड में फूड सोर्स होती है। और अगर हमारे पास जैसे अभी तक इस प्लांट का खाली स्टेम बना है, लीव्स नहीं बने हुए, तो फूड कहाँ प्रेजेंट है? फूड यहाँ पे प्रेजेंट है, इनसाइड द सीड। तो हमारे पास जो ये सीड है दैट इज द सोर्स, एंड हमारे पास जो ये स्टेम है दैट इज द सिंक। सो हमारे पास जो मूवमेंट ऑफ एसिमिलेट्स हो रही होगी वो फ्रॉम द सीड अप टू द स्टेम हो रही होगी। बट लेट्स से हमारे पास ओवर टाइम ये जो प्लांट था ये मेच्योर हो गया, इट मेच्योर्ड, और इसके बहुत सारे लीव्स बन गए, और ये लीव्स भी मेच्योर हो गए। नाउ दीज लीव्स आर द सोर्स एंड द रूट्स बिकम द सेम। तो अब हमारे पास जो मूवमेंट हो रही होगी वो अप टू डाउन हो रही होगी। सो फ्लोम के अक्रॉस दोनों तरीके से मूवमेंट हो सकती है, बॉटम टू अप टू डाउन। इट जस्ट डिपेंड्स कि कौन सी चीज सोर्स है और कौन सी चीज सिंक है, और जो हमारा प्लांट है वो कौन सी डेवलपमेंटल स्टेज में है, वो कितना ग्रो कर गया। सो फ्लो में बायोडायरेक्शनल फ्लो हो सकता है। हमारे पास जो जाइलम है उसमें ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स हो रही होती है, और जाइलम में कोई भी प्रोसेस एक्टिव प्रोसेस नहीं होता। जाइलम में किसी भी पॉइंट पे हमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, किसी भी पॉइंट पे एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होता। ऑन द कॉन्ट्ररी जब फ्लो में ट्रांसलोकेशन होती है, हमारे सोल्यूट्स, हमारे एसिमिलेट्स ट्रांसपोर्ट हो रहे होते हैं, इट इज एन एक्टिव प्रोसेस। हमारे पास एक्टिव लोडिंग एक्टिव अनलोडिंग होती है, प्रोटॉन्स की जो पंपिंग होती है वो एक एक्टिव प्रोसेस के थ्रू हो रही होती है। हमारे पास जब हम रेट्स को कंपेयर करते हैं, डोंट हैव टू गो इनटू द डिटेल ऑफ इट, बट जाइलम एंड फ्लोम के अगर हम रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट को कंपेयर करें तो जाइलम का जो रेट ऑफ ट्रांसपोर्ट है, रेट ऑफ फ्लो है, वो स्लोअर होता है इन कंपैरिजन टू फ्लो। अच्छा, हमारे पास जो फोर्सेस होती हैं विच आर basically causing the movement of xylem, of water inside xylem, they're the transpirational pull, mass flow and root pressure. Whereas जो flow है, flow में हमारे पास mass flow और active transport ही हो रहा होता है। That's about it. Okay, 05 हमें करना है, but 05 we'll do with कल हम जब कर रहे होंगे टॉपिकल पेपर्स, तो हम 05 के क्वेश्चंस के साथ ये adaptations पढ़ेंगे, so that you guys have an idea how 05s are tested in the paper. Tomorrow we will be doing the topicals of transport and plants.